नश्च प्रायश वज्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया उत्तम श्लोके भगवते भगवद्गीताश्लोके लोके हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुम् इहार्हति अविपक्वकषायाणां कषायाणाम् हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुम् इहार्हति मां द्रष्टुम् इहा अर्हति अविपक्वाकषायाणां अविपक्वकषायाणाम् अविपक्वकषायाणाम् दर्शोऽहं तु योगिनाम् सुदर्शोऽहं तु दशोऽहं योगिनाम् योगिनाम् ता ओ नारद अस्मिन् this Janmani instant of life Bhavan yourself are not me Drashtum to see Iha here Arhati deserve Avipakva immature Kashayanam material dirt Durdarshaha difficult to be seen Aham I Uyogina incomplete in service. O Narada, the Lord spoke, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service, who are not completely free from material pain, all material taints can hardly see me. O Narada, the Lord spoke, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material taints all can hardly material see things me. can hardly see. कौन पढ़ना चाहता है हाथ खड़ा करो रश्मि जोशी तो कल पढ़ा है भूमिका माता जी यस आप पढ़िए Hare Krishna Prabhuji, Sadar Pranam. The personality of Godhead is described in the Bhagavad Gita as the most pure and pure, the supreme and the absolute truth. There is no trace of a tinge of materiality in his person, and thus one who was the slightest tinge of material affection cannot approach him. The beginning of devotional service starts from the point when one is freed from at least two forms of material mode, namely the mode of passion and the mode of ignorance. The result is exhibited by the signs of being freed from calm, lust, and low covetousness. This is to say, one must be freed from the desires for sense satisfaction and avarice from sense gratification. The balanced mode of nature is goodness, and to be completely freed from all material tinge is to become free from the mode of goodness also. To search the audience of God in a lonely forest is considered to be in mode of goodness. Sorry, Prabhu. And to be completely freed from all material tinge is to become free from the mode of goodness also. To search the audience of God in a lonely forest is considered to be in the mode of goodness. One can go out into the forest to attain spiritual perfection, but that
does not mean that one can see the Lord personally there. One must be completely freed from the all material attachment and be situated on the plane of trans- transcendence, which alone will help the devotee get in personal touch with the personality of Godhead. The best method is that one should live at a place where the transactional from the Lord is worshipped. The temple of Lord is transcendental place, whereas the forest is a materially good habitation. A no-faith devotee is always recommended to worship the deities of Lord Archana rather than go into the forest to search of the god. Devotional service begins from the process of archana, which is better than going out in the forest. In his present life, which is completely freed from all material hankerings, Sri Narad Muni does not go into the forest, although he can turn every place into Vaikuntha by his presence only. He travels from one planet to another to convert men, gods, kinnaras, gandharvas, rishis, munis, and all those to become devotees of the Lord. By his activities, he has engaged many devotees like Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj, and many others in the transcendental service of the Lord. A pure devotee of the Lord therefore follows in the footsteps of of the great devotees like Narad and Prahlad and engages his whole time in glorifying the Lord by the process of kirtana. Such a preaching process is transactional to all material qualities. Hare Krishna Prabhuji. ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् अन्तास्मिन् मां जन्मनि मां भवान् द्रष्टुमिहार्हति। मां द्रष्टुम् इहार्हति परिपक्वकषायाणां अविपक्वकषायाणाम् अपरिपक्वकषायाणाम् दर्शोऽहं कुयोगिनां। दुःसोऽहं दुःसहोऽहं योगिनाम्। O Narada, the Lord spoke, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service, who are not completely free from all material taints, can hardly see me. Okay. Audio is okay now? I hope so. We quote this shloka many times. Avipakva, and the second word is kashaya. So we have to be patient. We have to be ready when we are ripe in devotion service. Krishna wants to reveal himself. But if Krishna reveals himself to us when we are not ready, we cannot handle it. Nothing stops. You understand? अरे हाँ, ये तो हिंदी की क्लास है। तो अभी जैसे कृष्ण जी इधर आना चाहते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आ सकते, बात भी कर सकते।
लेकिन हम रेडी नहीं हैं। वो रेडी, जैसे माँ बेटे के बच्चे के लिए रेडी है, कभी कभी बच्चा रेडी नहीं होता है ना। कभी कभी बच्चे रूठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस ही ठीक रहता है कुछ सिचुएशन में। सो अविपक्वा, अभी हम भगवान का सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें हम भगवान के साथ स्नेह से बात कर सकें, अभी हम उसके लिए रेडी नहीं हैं। इसलिए पेशेंट होना जरूरी होता है। पेशेंट नहीं होते तो लोग दो तरह से गड़बड़ करते हैं। एक तो लोग सहजिया बन जाते हैं, आओ कि भगवान का नाम सुना रोने लगे। वो पेशेंटली सिचुएशन को वेट नहीं कर सकते आने के लिए, नहीं मेरे को इमीडिएटली चाहिए शुद्ध भक्ति। अभी आपका तो शुद्धिकरण नहीं हुआ। हाँ, क्या दिया भगवद गीता में, भागवतम में, तदा रजस्तमो भावा कामलोभादय चेते एते अनाविदम सितम सत्वे प्रसीदति। कामा लोभादयश्चे, जब रजोगुण तमोगुण चला जाता है हृदय से, तो उसके लक्षण होते हैं कि हृदय में काम, इंद्रिय भोग की लालसा, लोभ, और चाहिए और चाहिए, कितना भी इंद्रिय भोग दे दो और चाहिए, काम और लोभ। तो ये हृदय से जब तक नहीं जाएगा तो इसलिए हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए हमको शांति से उस सिचुएशन को मैनिफेस्ट होने दीजिए। आप चाहते हैं एक सिचुएशन मैनिफेस्ट हो, भगवान मुस्कुराएं, मैं उनको दर्द दे के मुस्कुराऊं। आपको उस सिचुएशन को मैनिफेस्ट होने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए साधना होती है। कुछ भी जिंदगी में कोई भी चीज़ हो, धैर्य चाहिए, सिचुएशन मैनिफेस्ट करेगी, है ना। तदा रजस्तमो धावा कामलोभादय चेते एते अनाविदम सितम सत्य एवं प्रसन्न मनसा भगवत भक्ति योगतः। और ये स्थिति जिसमें काम लोभ से हम थोड़ा मुक्त हो गए, उसको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। कोई मुक्त पुरुष नहीं है। इधर भक्ति शुरू होती है, ठीक है। भक्ति शुरू होती है जब हम काम लोभ से मुक्त होके भगवान का नाम जप कर पाते हैं। हाँ, शुरुआत, अंत नहीं, शुरुआत। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चे चेते एते अनाविदम सितम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगत तत्व निज्ञानम मुक्त संग से जाए एवं प्रसन्न मनसो। तो ये चीज़ बताई गई बहुत अच्छे से। तो नारद मुनि ने भगवान का दर्शन लिया था, और दर्शन लेने के बाद भगवान उधर से चले गए। दर्शन लेने के बाद भगवान चले गए, छोटा सा दर्शन दिया। तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, तो फिर जरूरत क्या थी दर्शन देने की? जब दर्शन दे के भगवान अदृश्य हो गए, तो जरूरत क्या थी ऐसा दर्शन देना? था तो वो कंटिन्यूस देना था। जनरली अगर हम भगवान को देखते हैं तो फिर हमेशा के लिए देखते हैं। अगर हम इस लायक बन गए कि भगवान का दर्शन कर सकते हैं, तो वो हमेशा रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कल मैंने भगवान को देखा, हर रात भगवान नहीं। अगर देखते हैं तो आप 24 घंटे देखते हैं, क्योंकि आप उसके लायक बन गए तो 24 घंटे आप भगवान को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये नारद के अंदर स्पेशल ट्रेलर क्यों दिया है? तो स्पेशल कैंसर है, ऐसा जनरली भगवान नहीं करते। बट उसकी क्वालिटीज़ को देख के, भगवान कोई भी चीज़ नियम कोई बद्ध नहीं है, उसकी क्वालिटीज़ को देख के भगवान ने उसके हल्का दर्शन दिया। और उस दर्शन के बाद क्या होता है? दर्शन होने के बाद भगवान अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद भगवान अदृश्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी भगवान को देखने की लालसा बढ़ जाएगी। अब उसके बाद नारद मुनि ने सोचा ये तो मैकेनिकल प्रोसेस था, मैं ऐसा बैठूंगा भगवान के बारे में सोचूंगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। दोबारा ट्राई किया, नहीं प्रकट हुए। बिकॉज ये उनकी इच्छा है प्रकट होना
या नहीं होना, ये भगवान की इच्छा है। इसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि भगवान प्रकट हो, ठीक है, उनकी स्वेच्छा, स्वराट है। जन्मादि से तरत चारतेषु अभिघ्ना स्वराट, स्वराट टोटली इंडिपेंडेंट है। ये भी समझना मुश्किल है। तो पहला चीज हमको क्या सीखना है? पेशेंस। जो भी हम सिचुएशन चाहते हैं, भगवान का दर्शन या उनकी सेवा, सबसे पहले जिंदगी में सीखिए पेशेंस। जरूर मैनिफेस्ट होगी, बट टाइम से मैनिफेस्ट होगी, नहीं तो एक स्टेप फॉरवर्ड 10 स्टेप बैकवर्ड होगा, है ना। तो पेशेंटली आप कोई ऐसे सिचुएशन, जैसे प्रभुपाद जी चाहते थे कि अपने गुरु का मिशन लें, विश्व भर में फैलाएं। 26 ईयर्स, 1922, 1936, वो प्रभुपाद जी 40 वर्ष के थे जब उनको अपने गुरु से चिट्ठी मिल गई थी कि विश्व भर में गीता को फैला दो। लेकिन उस समय उन्होंने देखा भी सिचुएशन रेडी नहीं। 15 साल वेट किया। पेशेंट, हर चीज में शांति से काम होता है, बहुत पेशेंट, ठीक है। एक चीज पेशेंट। दूसरा चीज हम उनके लक्षण देख रहे हैं नारद मुनि के। श्री श्री राधा गोविंद की, श्री श्री गौ निताय की। सो अविपक्वा कषायाना, ठीक है। जब हम रेडी हो जाएंगे तो सिचुएशन मैनिफेस्ट हो जाती है। तो कृष्ण जी देखते रहते हैं। अरे तो एक तो चीज कि हम पेशेंस चाहिए, दूसरी चीज सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशन भगवान के कंट्रोल में है, और वो पूर्ण रूप से स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। एक बारी प्रभुपाद जी का तबीयत बहुत खराब था, तो भक्तों को बोले प्रार्थना करो कि भगवान अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे गुरु को इस दुनिया में थोड़ी दिन और रहने दो, लेकिन ये एक लाइन डाल दो, अगर, इफ यू सो डिजायर, क्योंकि भगवान स्वराट है, हम फोर्स नहीं कर सकते भगवान को प्रकट होने के लिए, करेक्ट। हम कभी कभी चाहते हैं कि ऐसा हो। तो दो चीज अगर आप अपने जीवन में अपनाने तो आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। क्या चीज थी? हाँ, पेशेंस। आप एक सिचुएशन चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, थोड़े धैर्य रखिए, इच्छा जरूर रखिए, उसके लिए प्रयत्न रखिए, लेकिन धैर्य रखिए। दूसरा चीज़, इस चीज़ पर ध्यान रखिए कि सिचुएशंस आपका कंट्रोल में नहीं है, भगवान के कंट्रोल में है, और वो स्वराट है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। वो जो सिचुएशन चाहेंगे आगे प्रकट करेंगे। ये दो चीज़ अगर आपके मन में फिक्स हो जाती है तो हमेशा आप खुश रहेंगे। हम गलती करते हैं दोनों में, या तो हमारे पास धैर्य नहीं होता, अधीर हो जाते हैं, अभी चाहिए, अर्जेंट चाहिए, अभी वो सिचुएशन नहीं मैनिफेस्ट कर रहे भगवान। जैसे नारद मुनि भगवान का दर्शन चाहते हैं, ये भी एक सिचुएशन है, ठीक है ना। आप इस सिचुएशन को इमीडिएटली मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। कृष्ण जी बोल रहे हैं अभिपक्वा कषायाना, नारद अभी वो सिचुएशन मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, तुम उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो कृष्णा उसको रोके हुए हैं। दूसरा चीज, वो हमारा कंट्रोल में नहीं है, अभी होने का, भगवान का कंट्रोल में है। तो ये दो चीजें हमारे मन में क्लियर हो जानी चाहिए, अभिपक्वा कषायाना। ये दो चीज अगर हमारे मन में क्लियर हो जाएंगी तो हमारे भक्ति का प्रगति होगा। क्या दो चीज? अभी पेशेंस एंड स्वराट। तो यही चीज आपको देख सकते हैं कि नारद मुनि अभी चाहते हैं, अरे भगवान का दर्शन किधर चला गया, इतना सुंदर दर्शन था, हमको इतना खुशी हो रहा था इस दर्शन में, ये दर्शन कहाँ चला गया। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं
नारद अभिपक्वा कषायना, अभी आप रेडी नहीं हो। अभी पक्वा जैसे आम अभी पका नहीं है। अभी आप चाहते हो कि दर्शन आपको मिले 24 आवर, वो अभी मैं मैनिफेस्ट नहीं करूँगा, तुम उसको हैंडल नहीं कर सकते, है ना। मृत्यु लोक में जो भी, इसका कारण तो सिंपल है, हम जो भी लोग में हम लोग हैं, हम ईर्ष्या करके भगवान से आए। क्यों आए मृत्यु लोक में? ईर्ष्या से। अगर हम भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे तो हम हैंडल नहीं कर सकते, हमारा गुस्सा बढ़ेगा। इसलिए बोलते हैं हम आर्टिफिशियली भगवान को देखना चाहते हैं। अगर असली में चाहते तो भगवान आ जाते ना। क्यों नहीं आ रहे? कभी हम रेडी नहीं है, ना ही हमारी इच्छा पूर्ण है। हम इच्छा करते हैं भगवान भी आए, लेकिन हमारे पास बहुत अलग इच्छा भी है, जिसकी वजह से अभी वो प्रकट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें अभिपक्व कषाया नाम हमारे भक्ति मार्ग में भी चलता है। हम चाहते हैं कि शुद्ध भक्ति हो, हम चाहते हैं कि कृष्ण प्रेम से हमारी आंखें भरे रहें, हम ये सब चीज़ें चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम इसके लिए रेडी नहीं है, ये समय नहीं है अभी, इसके लिए समय नहीं आया अभी। इसलिए शास्त्र में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है, उत्साह निश्चय धैर्य। भगवान का भक्ति उत्साह से होता है, निश्चय कॉन्फिडेंटली होता है। जरूर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जरूर हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। उत्साह, बहुत एंथुजियाज्म। बट तीसरा चीज धैर्य, पेशेंस। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, इस मूड में हमको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। संगो त्यागा, जिनको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है उनसे संग दूर रखना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनार्थ संग त्यागा सतो वृत्ति। सतो वृत्ति मतलब हमें जो आचार्यों के एग्जाम्पल्स उसको फॉलो करना चाहिए, तब हमारा भक्ति में प्रगति होगा। तो प्रसिद्धति, तब भक्ति में प्रगति होता है। तो ये क्वाइट क्लियर, वेरी फेमस श्लोक है। नारद मुनि जंगल में रो रहे हैं कि मेरे को क्यों दोबारा दर्शन नहीं मिल रहा। तो भगवान अभी दर्शन नहीं दिया, और नारद मुनि को ज्ञान दिया, आवाज़ आई, नारद भक्ति करते रहो, अभी तुम रेडी नहीं हो, जब तुम रेडी हो जाओगे मैं मैनिफेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हमको भी लगता है ना कि कब आँख में आंसू आएंगे, कब भगवान का दर्शन मिलेगा। चलते रहो, जब रेडी होगे ऑटोमेटिकली सिचुएशन मैनिफेस्ट हो जाएगा। जैसे हम कल पढ़ रहे थे, जो भगवान के महान भक्त हैं वो हर क्षण भगवान के विरह में जीते हैं। कैसे जीते हैं? भगवान के विरह में। कितना एडवांस्ड है वो। उनको पैंग्स, हृदय में जोर का भगवान का सेपरेशन का फीलिंग होता है। बहुत मुश्किल है इसको समझना, बहुत मुश्किल। भगवान का विरह का दर्द उनके हृदय में होता है, और वो आध्यात्मिक मिठास है। बहुत आध्यात्मिक प्रगति के बाद ऐसी स्थिति आती है ना। तो इसी तरह भक्ति मार्ग में कभी कभी हम सोचते हैं, यार हम तो इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। बड़े बड़े भक्त भगवान के दर्शन के हृदय में जोर की इच्छा लेके बैठे रहते हैं, है ना। कब ऐसी स्थिति आएगी कि हम भी ऐसे स्थिति में, सिचुएशन में पहुंचेंगे? नहीं, टाइम लगता है हर चीज़ में, और समय के साथ जैसे हृदय पवित्र होता रहता है, हम उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। ओके, हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक बात बता सकती हूँ? हाँ बोलिए। आज एक बहुत बड़ी सीख मिली आपसे।
इसके लिए थैंक अभिपाट्वा यू। कषायनम। यस कषायणम, यस। ठीक है। बहुत बड़ी सीख मिली और आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोले माता जी। जी प्रभु जी, कल क्लास होंगे, संडे है। कल क्लास रात को हो।